हेलो हाय नमस्कार पहला स्वागत है आप सभी दर्शकों का हेलो कुमाऊं की खास सीरीज पाठशाला में। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम आपके बीच में लेके आते हैं क्षेत्र के अलग अलग कॉन्वेंट और सरकारी स्कूल। क्या ये स्कूल आपके बच्चे के लिए है परफेक्ट? आइए चलते हैं आगे। शिक्षा ही सर्वत्र है और शिक्षा ही है शस्त्र। आज शिक्षा से ही दुनिया में है बोलबाला। शिक्षा से ही सोच बदल, शिक्षा से समाज बदल। आओ मिलके चले फिर पाठशाला। शिक्षा ही सर्वत्र है और शिक्षा ही है शस्त्र। आज शिक्षा से ही दुनिया में है बोलबाला। शिक्षा से ही सोच बदल, शिक्षा से समाज बदल। आओ मिलके चले फिर पाठशाला। शिक्षा ही सर्वत्र है और शिक्षा ही है शस्त्र। आज शिक्षा से ही दुनिया में बोलबाला। शिक्षा से ही सोच बदल, शिक्षा से समाज बदल। आओ मिलके चले फिर पाठशाला। तो इस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं NNDM वीर सेवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिनियानौला रानीखेत में। आज के एपिसोड में हम देखेंगे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल में एजुकेशन फैसिलिटीज़ कैसी है। आइए सबसे पहले देखते हैं विद्यालय के भवन को। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। भारतीय संस्कारों के अनुसार विद्या को देवी का और विद्यालय को मंदिर का दर्जा दिया गया है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही विद्यालय की जहां बच्चों को न सिर्फ शिक्षित किया जाता है बल्कि उनके मूल्यों की नींव रखी जाती है। Today we are very fortunate that we have a special team with us, that is Hello Kumaon team. This is not the new team for us because time to time we have taken their cooperation to upgrade our school activities. So students, मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ यहाँ पर आप सभी का, हमारे सारे स्टाफ का, प्रिंसिपल मैम का, और साथ ही साथ एक विशेष मैं स्वागत करती हूँ हेलो कुमाऊं टीम का, जो हमारे साथ निरंतर प्रयासरत है कि सारे विद्यालय, जितने भी विद्यालय रानीखेत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और स्पेशली हमारे विद्यालय को जो उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है लगातार पिछले वर्षों से, तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। एक बार पुनः आज उनके साथ हमें जुड़ने का मौका मिल रहा है। चिनियानौला में स्थित NNDM वीर सेवा स्कूल अपने प्रयासों से बच्चों को व्यावसायिक और व्यवहारिक तौर पर शिक्षित कर रहा है। आइए जानते हैं यहाँ के बच्चों से क्यों है NNDM वीर सेवा इतना खास। Hello everyone, I am Prashansa Tiwari of class 9 studying in NNDM Veer Shiva Senior Secondary School Ranikhet. I got admission in the school last year in my class 9 and it has not been even 1 year since I stepped in this heartwarming and welcoming building of the school, and I have seen that a lot of people are so friendly. The faculty is good and we can see that there are a lot of well developed labs too. Like we have well developed and well equipped computer labs, we have math labs, geography labs. Also, there are different facilities provided to students like the music club and also different sports clubs. There, in our NNDM Veer Shiva Senior Secondary School, students are making a lot of progress in their academics too. Their concepts are being cleared by the teachers whenever they need. The teachers are very hardworking, and also we can see here that many programs are being conducted. Like this program too, Pathshala program conducted by Hello Kumaon team. We can say that to bring out the potential of the students and to make them express their views. So I would only say that all the parents should come in our NNDM Veer Shiva Senior Secondary School, and more parents should admit their child here. This school has a lot of good facilities, the faculty is good, and there the teachers are hardworking. What matters more is the environment. The environment makes the students learn, we can say, teamwork, and it brings a spirit of working together in different students. My name is Shubhangi Rawal. I study in class 9. So I have taken admission in Veer Shiva from 9th standard, and I found Veer Shiva is a very good school and is one of the most good schools we have found in Ranikhet. It has many facilities like the chemistry lab, bio lab, and physics lab. There are also SST lab and math lab for extracurricular activities. I found that it has a great environment for students. It has a disciplined environment. The students come and just are going to do great things by this environment. They provide us everything. They give us support to do every good thing
They make us as a student to be a good one, we can say. It has great reputation. Its facilities, it has remarkable progress in academics, sports, music, and other things. And we can say that Bir Shiva has an environment which led a student to know about himself more than others. Hi everyone, my name is Anushka Chilwal. I am the student of NNDM Bir Shiva Senior Secondary School. I have taken the admission from 6th class and now I am in 11th science class. In the past 5 years, I have seen that there are so many progress in this school. In the previous year, when I was in 10th, I got 94.8% because of the hard work of our teachers. I am so proud that I am the Bir Shivaites. The teachers are just amazing. The teachers are very hardworking. So my parents chose Bir Shiva because of so many things. This is situated in very peaceful area. The infrastructure of this school is very beautiful. There are so many facilities in our school. There are chemistry lab, bio lab, physics lab, maths lab, and so more. And in our Bir Shiva, there are sports clubs are also. And in the past 5 years, we have done so many beautiful things in the sports. सुप्रभात, मेरा नाम अनुष्का क्वारपी है। मैं NNDM Bir Shiva पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। पहला सवाल यह उठता है कि मेरे माता पिता ने यही NNDM Bir Shiva स्कूल क्यों चुना। तो इसका जवाब यह है कि यह मेरे घर से बहुत करीब है तथा यहाँ का वातावरण बहुत शांत है, जिससे पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं होती। बात आती है यहाँ की उपलब्धि की। यहाँ कई चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब और लाइब्रेरी और म्यूजिक रूम जैसी कई रूम्स हैं। विद्यालय की हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चों को न सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाए बल्कि उन्हें प्रयोगात्मक तौर पर भी सिखाया जाए। इसीलिए विद्यालय में विभिन्न प्रयोगशालाओं का निर्माण कराया गया है। शिष्य के मन में सीखने की इच्छा को जो जागृत कर पाते हैं वे ही शिक्षक कहलाते हैं। भारतीय मान्यताओं के अनुसार शिक्षक का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना जाता है, क्योंकि शिक्षक ही हमें सही या गलत के मार्ग का चयन करना सिखाता है। आइए जानते हैं यहाँ के शिक्षकों से कि उन्हें NNDM Bir Shiva कैसा लगता है। सर, मैं यहाँ पे जो है पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ और स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है। इसीलिए जो है, वैसे मेरा अभी जो बीएड है अभी जस्ट कंप्लीट हुआ पिछले ईयर का, तो जो है मैंने सुन के ही Bir Shiva के बारे में सुन के जो है इधर उधर के लोगों से सुन के कि यहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ की पढ़ाई ऐसी है, यहाँ के टीचर्स स्टाफ ऐसा है, प्रिंसिपल बहुत सपोर्टिव है, मैनेजमेंट स्टाफ ऐसा है, तो जो है मैंने ये सब सुन के यहाँ का स्कूल ज्वाइन किया। और उसके बाद से जो है यहाँ की क्लासेस देखिए आप, बहुत ही अच्छी स्मार्ट क्लासेस हैं। सारे क्लासेस में जो है बोर्ड्स, स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं और यहाँ पे म्यूज़िक क्लास होती है, बायोलॉजी लैब है एंड ऑल्सो जो यहाँ पे केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, प्रॉपर सारे लैब्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है लाइब्रेरी है, म्यूज़िक क्लास है, देन डांस क्लास है, यहाँ पे गेम्स भी होते रहते हैं और ताइक्वांडो क्लासेस हैं, योगा क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे। प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। हमारे जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं उनको हमेशा वो वेलकम करते हैं। एंड देन कुछ भी क्रिएटिविटी होती है, हमेशा वो हमारे ओपिनियंस को, हमारे जो हम सोचते हैं वो सब उनको जो है वहाँ पे मैटर करते हैं। वहाँ पे टीचिंग स्टाफ जो है वो बहुत ही अच्छा है।
यहाँ पे सारे टीचर्स अपने पूरे एफर्ट्स जो हैं बच्चों के प्रोग्रेस को लेके करते हैं यहाँ पे। बाकी बच्चे जो हैं उनका भी यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है उनके लिए बनाया गया है यहाँ पे सारे टीचर्स ने। और जो है यहाँ पे वीर शिवा जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए। Genuinely, I feel very good when my students learn the key points of my lecture. From the students, I always feel energetic and positive. Management always supports our innovative ideas. They always encourage us for the betterment of the students' skills, and they always fulfill our requirements regarding the teaching materials, regarding the students' needs. And we get training by CBSE time to time, and the management is very supportive, and my colleagues are very cooperative and well qualified. That's why I am in Veer Shiva. I am Sajna and I am working with Veer Shiva Ranikhet from last 1 year as a PRT teacher. So I'm so blessed that I'm working between these tiny toads. So nowadays it's a very big question for all the parents, and it's also a challenge that which school they should give admission to their child. So every parents are searching for a good school. We can assure them that Veer Shiva can be one of that. Hello everyone, I am Vaibhav Bhatt and I am working in this school as PGT Physics. We have all the facilities here. We have proper labs, physics labs, science labs. We have our infrastructures. The projectors are here, the smart boards are here. We have the best team working here as and giving all the selfless service. It's one of the most prominent school in this district. Also, it's not just a school; it's a group of school, not only popular in this district but also in other districts. And working in such an organization will give us an experience which we can use in later future. विद्यालय में दूर से आने वाले बच्चों का खास ध्यान रखते हुए बस सुविधा भी उपलब्ध है। इस विद्यालय को और भी खास बनाता है यहाँ के कर्मचारियों का अटूट विश्वास। मेरा नाम बालम सिंह बिस्सा है। मैं पिछले 26-27 साल से यहाँ वीर शिवा स्कूल में बस चलाता हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में तो बढ़िया स्कूल बहुत बढ़िया है। आज तक यहाँ बहुत बच्चे पढ़ के गए हैं, हमारे यहाँ से अच्छे लोग भी बन गए हैं, डॉक्टर भी बने हैं। बाकी मेरे बच्चे भी यहीं से पढ़े हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, पूरा घर जैसा ही सपोर्ट मिलता है हमें उनसे। तलवार साहब हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्हीं की वजह से हमारे बच्चे आज पढ़ गए हैं, कॉलेज वॉलेज पढ़ रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहते हैं वो। और मतलब कोई चीज़ की दिक्कत होती है तो हमारे जो मैनेजमेंट वाला है पूरा साथ खड़े रहता है। सर मैं यहाँ पे वीर शिवा स्कूल चिन्यानौला रानीखेत में करीब 1999 से जॉब कर रहा हूँ। लगभग मुझे 24 साल यहाँ पर होने जा रहे हैं। एक ही मकसद है, जब शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे आ गए हैं तो बच्चों को देखा हमने, जब यहाँ पर नर्सरी केजी में बच्चों का एडमिशन होता है, हम भी यही सोचते हैं कि ये बच्चा यहाँ से 12th पास करके निकले। जैसे वॉशिंग मशीन बच्चे के दाग धब्बे, कपड़ों के दाग धब्बे बाहर कर देती है, वैसे ये स्कूल वीर शिवा स्कूल भी जो है बच्चे को जीनियस बना करके 12th पास करा करके भेजता है। यहाँ पर रहने का मेन मकसद यहाँ पे ये है कि जब 12th पास करके बच्चा जब 90, 95, 98, 100 तक भी मार्क्स ले करके आता है तो उस वक्त जब मिठाई आती है वो बहुत मीठी लगती है। एक तरीका ये भी है यहाँ पर रहने का। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ का मैनेजमेंट है, तलवार साहब हैं, जिनका नाम लेने में भी थोड़ा सा हिचक से आ रही है लेकिन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एक मकसद वो भी है, उन्होंने काफ़ी जो है हम लोगों को सपोर्ट किया है। हमने काफ़ी स्ट्रगल यहाँ पर शुरू में हमने काफ़ी स्ट्रगल किया है, जिसकी जीती जागती तस्वीर आज आप हेलो कुमाऊँ हेलो रानी के सामने प्रस्तुत हो रही है। इसलिए मेन मकसद ये भी है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है बच्चों के लिए यही कहना चाहते हैं, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जिस शिक्षा वो माँ का दूध है, जिसने पिया वो दहाड़ा है सर। मैनेजमेंट की सपोर्ट की ही वजह से यहाँ पे रुके हुए हैं। काफ़ी लंबा वर्क यहाँ पर हमने परिश्रम किया हुआ है शुरू से, जिसका खामियाजा आज हमें मिल रहा है, आज हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। धन्यवाद वीर शिवा स्कूल।
क्या ये वही विद्यालय है जहां कराना चाहते हैं आप अपने बच्चों का एडमिशन? यही सब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं NNDM वीर शिवा स्कूल में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्कूल की डायरेक्टर प्रीति पांडे जी। नमस्कार मैम, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आपकी जो हेलो कुमाऊं टीम है बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। मैंने आपका काम दूसरे स्कूल से रिलेटेड और स्कूल से ही संबंधित नहीं, कई अन्य सामाजिक समस्याओं पर या सामाजिक मुद्दों पर भी आपने बहुत ज्यादा हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि मैंने देखा है कि आप यंग टीम है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ आप लोगों ने संसाधन एकत्र कर रखे हैं। लिमिटेड संसाधन में इतना बढ़िया जो जनता को आप लोग ध्यान आकर्षित कर रहे हैं हर मुद्दे पर, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे स्कूल की स्थापना के बारे में, कब और कैसे हुआ? देखिए, विद्यालय की नींव यहाँ पर 30 वर्ष पुरानी है और विद्यालय जो है एक हमारे जो संस्थापक थे श्री NND भट्ट जी, तो उनका एक सपना था कि कुमाऊं यानी कि पहाड़ में कुछ बच्चों के लिए ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए जिससे वहाँ के बच्चे लाभान्वित हों। तो इसी स्वप्न को लेकर के उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना करी और आज इस विद्यालय को लगभग 30 वर्ष कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो ये विद्यालय जो है, जैसे कि हमारा जीवन है जो उतार और चढ़ाव से भरा हुआ होता है, तो इसी तरह से इस विद्यालय के साथ भी हमारे काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। लेकिन अभी जो है वर्तमान में विद्यालय काफी अच्छा एस्टेब्लिश हो रहा है और टीम जो एक हार्ड वर्किंग टीम है वो काफी अच्छा काम कर रही है। एजुकेशन की डिमांड साइड को देखते हुए आपसे जानना चाहूंगा कि प्री प्राइमरी की अगर मैं बातचीत करूं तो क्या क्या फैसिलिटीज है? देखिए, प्री प्राइमरी क्लासेस में हमारे पास इस समय बच्चों के लिए एबेकस है और एबेकस जो होता है बच्चों का एक जो IQ लेवल को स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, जिसमें बच्चे विभिन्न प्रकार की ट्रिक्स और टेक्निक्स का यूज करते हुए गणित सब्जेक्ट में विषय में काफी महारत हासिल करते हैं और उसके साथ में बच्चों को वैदिक गणित की शिक्षा दी जाती है। और बच्चों का सबसे अच्छा हमारा एक जो फोकस है वो बच्चों को हम आत्मविश्वासी बनाना चाह रहे हैं और साथ में बच्चों को जो एक पेरेंट्स का एक मेन एक्सपेक्टेशन स्कूल से है कि बच्चा इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखे, जिसकी वजह से वो इंग्लिश माध्यम को चुनते हैं, तो वो हम सिखा रहे हैं। अच्छा, प्राइमरी लेवल के अगर बच्चे की अगर मैं बातचीत करूं तो बुक्स से अगर उसे पढ़ाए तो उतना इंटरेस्टिंग उसके लिए नहीं रहता है, वो थोड़ा बोर होता है। तो उस बच्चे के लिए क्या क्या इंटरेस्टिंग, कैसे उसकी क्लास कर रहे हैं? देखिए, बच्चों के लिए हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं और अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ज्यादा सुविधाएं छोटे बच्चों के लिए ही हैं, क्योंकि इन बच्चों के ऊपर एक तो सिलेबस का दबाव नहीं है और दूसरा इनका बौद्धिक विकास इनका इतनी जल्दी होता है कि कैचिंग पावर इतनी बढ़िया होती है कि आप इनको छोटे कम समय में भी कई चीजें सिखा सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो स्मार्ट क्लासेस है, क्योंकि मीडिया और ऑनलाइन पोर्टल्स आजकल एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप एक सेकंड एक क्विक के अंदर आप जो है बच्चों को यहाँ से बेंगलोर, यहाँ से अमेरिका कई चीजें दिखा सकते हैं और जो जितनी छोटी उम्र का बच्चा होता है मेरे हिसाब से वो देखकर बहुत ज्यादा सीखता है। अगर हम A फॉर एप्पल उसको सिखा रहे हैं वो शायद उतना न समझे जितना हम एप्पल उसके हाथ में दे दें। तो हमारा मेन फोकस ये रहता है कि जो कि एक नई शिक्षा नीति जो हमारी आ रही है उसमें भी दिया गया है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब अनुभव से सीखना, करके सीखना। तो हमारे लिए बच्चों के लिए कई सारे मॉड्यूल्स हैं, कई सारे बच्चों को हम प्रॉप्स बना के सिखाते हैं, करके सीख के सिखाते हैं। विद्यालय के आसपास जो हमारा वातावरण है उसमें कई चीजें सीखने की हम उनका प्रयोग करते हैं, जैसे स्पीडोमीटर है, ये हम बाइक की स्पीड से हम बच्चों को दिखा सकते हैं, बाइक्स खड़ी रहती है टीचर्स की तो वो चीज ले आते हैं। तो जरूरी नहीं हर जगह पैसा लगाया जाए, हर चीज पैसे से खरीदी जाती है। बच्चे का मेन फोकस ये रहता है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को वो ऑब्जर्व करे और उससे सीखे। बड़ी क्लासेस की अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो मैं विद्यालय में देख रहा था कि लैब से यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एक बच्चे के लिए जितना थ्योरी नॉलेज है साथ ही उतना प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इसे? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रयोगात्मक शिक्षण के बिना बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता। इवन यहाँ तक कि बीटेक ले लीजिए, रिसर्च ले लीजिए, आगे जितने भी स्कोप है जिसके बाद बच्चों को रोजगार मिलता है वो हमेशा प्रयोगात्मक रास्ते से होकर के ही जाती है चीजें। तो लैब का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, उसके पीछे फोकस वही है कि करके सीखना। और जरूरी नहीं कि जिस विषय में हमें CBSE ने कहा है कि बच्चे को प्रैक्टिकल कराइए हम उसी में कराएं। हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा करके सीखे। एक फिजिक्स का विद्यार्थी है, अगर उसको ये नहीं पता कि बल्ब घर में कैसे चेंज होता है तो हमारे लिए वो पढ़ाई काउंट नहीं करती। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि घर में अगर मिक्सर ग्राइंडर है तो वो कैसे घूम रहा है, वॉशिंग मशीन कैसे काम कर रही है, रेफ्रिजरेटर के पीछे क्या कंसेप्ट है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए जुटाना और उस पर कार्य करना इतना मुश्किल नहीं है, खासकर उस समय में जब हमारे पास सारी चीजें, सारे संसाधन एक क्लिक में मौजूद है। तो शिक्षक उसका अध्ययन करता है और अध्ययन करने के बाद उसको बच्चों को बताता है, बिल्कुल साधारण और सिंपल लैंग्वेज में। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो NNDM वीर शिवा स्पोर्ट्स के फील्ड में क्या कुछ नया कर रहा है? देखिए, स्पोर्ट्स में बच्चे बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं और आजकल जिस हिसाब से CBSE की गाइडलाइंस है कि हम बच्चों को
डांटें भी ना या हार्श लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज ना करें। जैसे हमारे टाइम में तो थप्पड़ खा खा के शिक्षा हो जाती थी, तो ऐसे समय में स्पोर्ट्स बहुत कारगर है, क्योंकि हम बच्चों को कहते हैं कि अगर आप हमें ये काम इतना बढ़िया करके दिखाते हैं, हम आपको स्पोर्ट्स कराएंगे, हम आपके लिए ये टूर्नामेंट कराएंगे, हम आपका पार्टिसिपेशन यहाँ कराएंगे। तो इस तरीके से बच्चों को लर्निंग के लिए मोटिवेट करने का एक माध्यम है हमारे लिए स्पोर्ट्स, क्योंकि बच्चे खेल में रुचि रखते ही हैं हर उम्र के। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो भी टूर्नामेंट इस रानीखेत क्षेत्र के अंदर या जहां से भी हमें निमंत्रण आता है, तो वो प्रतियोगिताओं में हम पार्टिसिपेशन कराते हैं। उसके लिए हमने कोच रखे हुए हैं और स्पोर्ट्स टीचर रखे हुए हैं, और जरूरत पड़े तो हम गेस्ट फैकल्टी में भी। अगर मैं बात करूं पर्सनैलिटी ग्रोथ की, तो क्या कुछ कर रहे हैं एनएनडीएम बीर सेवा स्कूल एक बच्चे के लिए? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इस विद्यालय को चलाने का, क्योंकि पहाड़ में ज्यादातर बच्चे नॉलेजेबल होने के बाद भी आत्मविश्वासी कम देखे गए हैं। ऐसा माना गया है कि जो बच्चे के पास जितना टैलेंट है वो कुछ ना कुछ हिचकिचाहट की वजह से शायद सामने नहीं आ पाता है। तो बच्चों को आत्मविश्वासी बनाने के लिए हमारे यहाँ मॉर्निंग असेंबली होती है, जिसमें हर क्लास से बच्चा को जो है 1-1 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें वो मंच पर आएं और अपने विचारों को व्यक्त करें, और साथ ही साथ उनकी नॉलेज भी बढ़े। जैसे जीके क्वेश्चंस पूछना डेली, और उनको अपडेट रखना, करंट अफेयर्स के बारे में बताना कि क्या आजकल समसामयिक चल रहा है। साथ में वोकेबलरी, कुछ नए वर्ड्स इंग्लिश के, हिंदी के, और कुछ योगा से रिलेटेड टिप्स, लाइफस्टाइल से रिलेटेड टिप्स, मॉरल थॉट, तो न्यूज़, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है। आत्मविश्वास बच्चों की बढ़ाने की आपने बात करी, मैम आपसे जानना चाहेंगे क्या विद्यालय बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा पे भी काम कर रहा है? जी बिल्कुल, बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी विद्यालय काम कर रहा है, क्योंकि इसमें बच्चों को हम समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो कारीगर्स होते हैं, चाहे वो हम इलेक्ट्रीशियन से लेकर के कहें, चाहे वो आईटी सेक्टर के लोग कहें, तो हर लेवल के लोगों को हम यहाँ पे बुलाते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग क्षेत्र से रहें, वो उनको काम की प्रोसेस के साथ साथ उसके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताते हैं, और साथ ही साथ उनकी काउंसलिंग भी करते हैं कि अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो इंजीनियर वो कैसे बने, डॉक्टर्स को बुलाते हैं, उनकी जर्नी के बारे में बताते हैं। तो ये उनके लिए एक मोटिवेशन भी होता है और साथ साथ में एक जानने का जरिया भी होता है। काफ़ी सारे एनएनडीएम बीर सेवा स्कूल से बच्चे पढ़कर आगे गए हैं जो डॉक्टर या अच्छे ऑफिसर रैंक में गए हैं। क्या एनएनडीएम बीर सेवा से कोई ऐसा बच्चा भी निकला है जो बिजनेस के क्षेत्र में गया है, वो नौकरी ढूंढने नहीं बल्कि उसने नौकरी दी हो? जी, ऐसे कई बच्चे हैं हमारे पास। अभी हमारा हाल ही में एक बच्चों को एल्यूमिनाइज, जितने भी हमारे पुराने बच्चे हैं, उनको बुलाने के लिए और यहाँ पर उनका एक सम्मेलन करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं। तो अभी जितने भी बच्चे मेरे पास आए हैं, करीब 30 से लेकर के ज़्यादा बच्चे, तो बीर सेवा से मैंने देखा है कि वो अपने आप में सक्षम है, स्वयं उन्होंने रोजगार क्रिएट किया है, अपना बिजनेस सेटल डाउन किया है, और साथ ही साथ हमारे विद्यालय से लक्ष्य सेन जैसे इंटरनेशनल बैडमिंटन स्टार हुए हैं, और जो अपूर्वा पांडे जी जो अभी इस समय आईएएस हैं, तो पहले रानीखेत ही पोस्टेड थी अभी हाल में, तो अभी उनका ट्रांसफर, वो भी बीर सेवा से ही पड़ी हुई है, और साथ ही साथ तृप्ति भट्ट जी जो आईपीएस है इस समय पौड़ी में जो है पोस्टेड, तो वो भी, ये सारे बच्चे बीर सेवा से ही पढ़े हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसे कई बच्चे यहाँ से निकलेंगे जो विद्यालय का नाम भी रोशन कर रहे हैं और स्वयं का भी। करियर से जुड़े काफ़ी कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों में, अक्सर हम देखते हैं, तो क्या विद्यालय बच्चे का करियर चुनने में उसकी हेल्प कर रहा है? जी, विद्यालय लगातार हमने वर्ष 2022 में 3 से 4 सेगमेंट करियर काउंसलिंग के करे हैं, और इन करियर काउंसलिंग में हमने एक्सपर्ट से डील किया है जो इसमें ट्रेन है इस सेक्टर में, और जिन्होंने बच्चों का इंटरव्यू भी लिया है, उनको जानने की कोशिश की है, उनका इंटरेस्ट, उनके पेरेंट्स के साथ उनकी काउंसलिंग की है, उनका रिटन टेस्ट लिया है, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हुआ है। तो 4 चरणों में ये करियर काउंसलिंग उनकी हुई है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, और इस कार्य को करने के लिए ही आपने क्यों सोचा? जब आजकल नव युवा जो है कई अदर चीजों की ओर जा रहे हैं, तो आप इस छोटी सी जगह में इतना बड़ा एक्सपोजर ले रहे हैं और ध्यान आकर्षित किया, तो ये कैसे हुआ? मैम, अगर हेलो कुमाऊं की अगर मैं बातचीत करूं तो सबसे पहले जो हेलो कुमाऊं की पूरी टीम है ये बड़ी टैलेंटेड है। इसमें जितने भी आप देखिए, जो कैमरा में है, जो एडिटिंग में है, या बैक ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, ये सारे लोग बड़े टैलेंटेड है। हम लोग की शुरुआत की अगर मैं बातचीत करूं तो शुरुआत हमारी हुई थी जब हमने चैनल ओपन किया था, तो हमने अपने आसपास देखा कि काफ़ी सारे टैलेंटेड लोग हैं लेकिन उन्हें एक मंच नहीं मिल पा रहा है। क्यों ना हम अपने आसपास से लोकल हीरो ढूंढना स्टार्ट करें? कब तक हम सोचे कि कोई नेशनल टेलीविजन में आ रहा है उसके बाद हम कहें कि हाँ ये हीरो है? क्यों ना हम अपने आसपास से हीरो ढूंढें। और साथ ही हमने काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ पे काम किए अपनी सोसाइटी से रिलेटेड, और इसके बाद आगे आपका स्कूल कैंपेनिंग है। और हमें लगा, हमारे चैनल को लगा कि सब चीज़ में तो यहाँ पे बातचीत हो रही है लेकिन शिक्षा पे तो यहाँ पे बातचीत ही नहीं हो रही है। तो हमें लगा कि एजुकेशन पे डिजिटली बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार कुछ हेलो कुमाऊं की शुरुआत रही थी। ये सबसे बड़ा मैं गुण आप लोगों का मान सकती हूँ, और बहुत एनर्जेटिक टीम है, बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ, हमें समय का पता ही नहीं चलता। तो आप लोग इसी तरीके से काम करते रहिए, और विशेषता इस विद्यालय से आप हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम, आप भी वाकई आज एनएनडीएम बीर सेवा में हमारी टीम मौजूद थी, स्कूल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, स्कूल के
एजुकेशन फैसिलिटी देखिए काफ़ी बढ़िया ये विद्यालय काम कर रहा है। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए बेटर है ये स्कूल, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि NNDM वीर सेवा को चुनिए। थैंक यू सो मच मैम हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो साथियों, NNDM वीर सेवा स्कूल में टीम हेलो कुमाओ इस वक्त मौजूद है। NNDM वीर सेवा स्कूल क्या कुछ एक्टिविटी कर रहा है, एजुकेशन एफर्ट्स कैसे है, इन सब की जानकारी लेंगे विद्यालय की प्रिंसिपल संगीता अधिकारी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। वेलकम टू अवर शो मैम। तो थैंक यू वेरी मच हेलो कुमाओ टीम कि आपने इतना समय दिया और हमने आपकी सारी वीडियोस देखते हैं और आप एक बहुत अच्छा माध्यम है हमारे समाज के लिए जो अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया भी कहना चाहती हूँ कि आप छोटे छोटे स्कूल, बड़े बड़े स्कूल, सभी स्कूल्स के जो वीडियोस हैं, वीडियोस के थ्रू जो आप जनता तक पहुँच रहे हैं, तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। डेफिनेटली मीडिया का रोल तो रहता ही है, लेकिन आप पॉजिटिव और हेल्दी वे में जो ले जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम हेलो कुमाओ टीम को अपने विद्यालय में इन्वाइट करने के लिए। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिंसिपल इन अ स्कूल? According to me, sir, the principal is the center of the school. Or being a principal, this is the big responsibility to create an environment for the students in which they can develop properly, as well as the coordination between parents and teachers. तो मैम टीचर इट्स नॉट जॉब, इट्स सर्विस, कितना सहमत है आप इस बात से? सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि डेफिनेटली अगर कोई भी टीचर बनना चाह रहा है या बना हुआ है तो उसको जॉब की तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रियली में बहुत बड़ी सर्विस है, एक सेवा है। बिकॉज वी नो कि जो हमारे देश का जो भी फ्यूचर है वो डेवलप हो रहा है स्कूल में। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, तो यही बच्चे आगे जाके कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई अच्छे प्रवक्ता बनेंगे, कोई अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे। तो हमें टीचर ही एक ऐसा माध्यम है जो इन बच्चों में संस्कार डाल सकता है और उनकी क्रिएटिविटी को समझ के उनको एक सही रास्ता दिखा सकता है। तो डेफिनेटली ये एक सर्विस है, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन अ स्टूडेंट लाइफ? इट्स अ वेरी बिग रोल सर। पेरेंट्स, बिकॉज जब बच्चा होता है पैदा तो पेरेंट्स फर्स्ट उसके टीचर होते हैं। हम अभी भी ये बोलते हैं कि बच्चा किस माहौल से आ रहा है वो हम उसके व्यवहार से पता करते हैं। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चे को कैसे संस्कार दिए जाए, उसको कैसा एटमॉस्फेयर दिया जाए, और इसीलिए पेरेंट्स की भूमिका बहुत बड़ी है। इनपुट जब एक बच्चा यहाँ पर होता है तो आउटपुट NNDM वीर सेवा स्कूल क्या कुछ उसमें रिजल्ट देखता है? सर हम बहुत अच्छा रिजल्ट देखते हैं बच्चों में, जैसे कि मेरा खुद का 3 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और जो मैंने देखा है बच्चे ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है अपने आप को। उनकी जो क्रिएटिविटी है जो भी उनके अंदर है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो एजुकेशन के फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जैसे हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें अच्छा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब बच्चा आता है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसके बाद ही वो यहाँ से सीख के जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास के अंदर सारे बच्चे एक समान नहीं होते, अगर कुछ हो कि कैचिंग मेमोरी थोड़ी वीक है, तो उन पर विद्यालय कैसे काम कर रहा है? सर हमारी रेमेडियल क्लासेस होती है, जैसे कि मॉर्निंग टाइम पे हम जो होते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस चलाते हैं। जो बच्चे वीक हैं उनके लिए हम टीचर्स से बोलते हैं कि उनका पहले कारण आप जानिए और उनको थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए। एज वेल एज हमने एक 0 पीरियड का भी हम यूज़ करते हैं। 0 पीरियड में हम क्या करते हैं कि जो बच्चे जिनको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है वो उसमें जाते हैं, और जो बच्चे थोड़ा वीक है, एकेडमिक वीक है, थोड़ा पढ़ने में जिनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, तो उनको टीचर्स एक्स्ट्रा हेल्प उस समय देती है। फीडबैक जब आप मैनेजमेंट को देते हैं तो मैनेजमेंट कितने जल्दी एक्शन लेता है? बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें विदिन 24 आवर्स में फुलफिल हो जाती है। करिकुलर एक्टिविटीज में क्या कुछ कर रहा है विद्यालय? को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे अभी हमने बताया था हॉबी क्लब्स हैं, तो उसका हमको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। अभी नन्दा देवी जो फेस्टिवल उसमें डांस कंपटीशन हमारा स्कूल फर्स्ट आया था। एज वेल एज अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो हमारे बच्चों ने ये अभी चल वैजंती बेलवाल, केडी बेलवाल जो है ये फर्स्ट टाइम हमने इसको अचीव किया है। इसके साथ साथ हमारे बच्चों का सिलेक्शन भी स्टेट वॉलीबॉल टीम के लिए हुआ है, जिसमें पीयूष जलाल है, आपको पता ही है, पीयूष जलाल है, शुभम कुमार है और एक विजय जलाल, 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। पीयूष जलाल एंड शुभम कुमार ने खेला भी है अभी स्टेट की टीम से, सो आई होप उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो हमने सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड करे हैं जिसमें बच्चे बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। हेलो कुमाओ की इस वक्त जो सीरीज आई है पाठशाला, इसकी टैगलाइन है शिक्षा सर्वत्र शिक्षा शस्त्र, कितना सहमत हैं आप इस बात से? सर 100% सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिससे हम सब कुछ जीत सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन की जो पावर है वो किसी में नहीं है, वो किसी शस्त्र में नहीं है। एजुकेशन अगर हम अपने समाज को एजुकेट कर देते हैं तो उससे हम बिल्कुल समाज को फिर पीछे नहीं ले जाया जा सकता है। उसके बिल्कुल डेफिनेटली वो डेवलप होगा, उसका विकास होगा। अगर हमारा पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा तो वो आगे क्या होगा, बिल्कुल डेवलप ही होगा। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि क्लास में
एक बच्चे का सबसे अच्छा गुण ये है कि वो अध्यापक से सवाल करे। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में आपके देख रहा हूँ, शायद मे भी आप सारे क्लासरूम में यहीं से नज़र बनाए रखती हैं, तो क्या आप यहाँ से देखती हैं कि बच्चे सवाल कर रहे हैं अध्यापक से? बिल्कुल सर, हमारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत करते हैं। और मैं भी जब सेशन लेती हूँ बच्चों का, तो मैं बोलती हूँ कि आप पूछिए, क्योंकि जब हमारे क्वेश्चन होंगे तभी उनका समाधान होगा और तभी हम सीखेंगे। एक आखिर सवाल, काफ़ी सारे माता पिता इस वीडियोस को देख रहे होंगे, तो वो अपने बच्चे का एडमिशन बीरसिवा स्कूल में क्यों कराए? वाई बीरसिवा? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सभी माता पिता से कहना चाहती हूँ कि आप बीरसिवा में अपना बच्चे का एडमिशन बिल्कुल करवा सकते हैं, क्योंकि बीरसिवा रानीखेत में एक ऐसा माध्यम है बच्चों के लिए जहाँ पर उनका डेफिनेटली पूरा 100% डेवलपमेंट होगा। मैं सिर्फ एक फील्ड में नहीं बोल रही हूँ, मैं कर रही हूँ सर्वांगीण विकास के बारे में बोलना चाहती हूँ कि बच्चा चाहे किसी भी फील्ड से आए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस बच्चे की क्रिएटिविटी को समझें। सभी पेरेंट्स से एक विनती है कि आप बिल्कुल आइए और एक बार विजिट करिए स्कूल का, देखिए कि जो हमने बातें करी हैं वो एक्चुअली में यहाँ है या नहीं है। अपने आप को आप संतुष्ट करिए, उसके बाद ही यहाँ पे एडमिशन के बारे में सोचिए। तो जितने भी माता पिता इस वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियो देखकर जरूर डिसाइड कीजिएगा क्या ये स्कूल परफेक्ट है आपके बच्चे के एडमिशन के लिए। तो साथियों, एनएनडीएम बीरसिवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिनियानौला रानीखेत का आज का ये एपिसोड आप लोग को कैसा लगा, हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाइए, लिखिए हेलो कुमाऊं और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों, इस स्कूल में आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, ये डिसीजन लेना है आपको, साथ ही हमें डिसीजन लेना है कि अपनी अगली वीडियोज़ में हम कौन से विद्यालय में विजिट करने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए हेलो कुमाऊं।